नमस्ते दीदी। All right. Can you all hear me? Excellent. So thank you so much for joining the class today. I'm sorry we couldn't do it yesterday. There were a lot of people who sent me a request that they wanted to move. So why not? हरी इच्छा। पूजा हो गई शालिनी पूरी? दीदी गेटिंग देयर हो जाएगी, अब पहले लगा था नहीं हो पाएगी। संकल्प भी अच्छा है, you get to know how much you can do. और आपने सिखाया था ना ट्रिप पे, तभी से। all right. So we were looking at the symbology of Chitrapur and हम लोगों ने ब्रह्मा जी देखे, ब्रह्म हमारा ब्रह्मा जी का कमंडल देखा, कमंडल का जल देखा, जल से चरण का स्पर्श देखा, है ना। और शिव जी की जटाओं पे आके अभी हम रुके हुए हैं, भागीरथी की तपस्या भी देख ली। सो एनी थॉट्स, एनी टेकअवेज फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ क्लासेस? नेहा, यू वांट टू गो फर्स्ट बेटा, फिर तेरे बच्चे कहीं चिल्लाने लगे। हाँ दीदी। Didi, so the takeaway that I could, take from the class, from the recording was that our head is our kamandal, and for knowledge to stay there, which is like Ganga river, full of knowledge to stay there, there are a couple of things that we have to, have. One is that I have to refer to my notes. Basically, what I could understand was you have to be keep yourself sane and saral to gain that knowledge, and also that our mind should be like Shivji ka jata, so that that knowledge could stay there. And जो बहुत मुश्किल होता है, it's very difficult to get that. And also yeah, that is what I could take away. You had a busy week. Hectic week. All right. Tanya, thoughts, गुड़िया? Namaste, Didi. Namaste. Didi, so I didn't attend the class. I probably didn't have the grace, तो नहीं कर पाई मैं. और I kept listening to the class in the loop, and that whole analogy of शिवजी की जटाओं वाला, like I can so relate to the fact कि कुछ रहता ही नहीं है यहाँ पे. मतलब everything is so fleeting कि जो रिसीव करते हैं उसको, जैसे आपने वो एग्जाम्पल दिया कि कितनी बारी हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं फुली व्हाट वी रिसीव. सो आई थिंक कि वो जो शिवजी की जटाओं वाला एग्जाम मतलब के लिए जो फेथ चाहिए, वो जो दृढ़ विश्वास चाहिए कि उसको रिटेन करने के लिए जो वो नहीं है अभी. मतलब तो बाकी सारी, जैसे अभी आपने सब ब्रह्मा का समझाया, बहुत मुश्किल है. गंगा जी को भी उस कमंडल में लेकर आना, वो भी हो गया. फिर किसी तरीके से भागीरथी की सेल्फलेस तपस्या भी हो गई. वो सब मतलब इट्स टू फार फेच. बट मैं वही सोच रही थी कि ये सब होने के बाद भी नाउ इट्स सो रिलेटेबल कि क्यों इतना सब कुछ समझने के बाद भी जब रिटेन नहीं कर पाते, मतलब वो रिटेंशन नहीं है. सो प्रोबेबली यस, जैसे आपने वो बताया कि जब हमारा फेथ भी है वो भी अनशेकेबल नहीं है. कई बारी कन्वीनियंस के हिसाब से हम चूज कर लेते हैं व्हाटएवर हाउ मच वी कैन स्ट्रेच आवरसेल्फ टू. सो वी लिसन टू कुछ चीजें अपने हिसाब से, अपनी ईगो, अपने लॉजिकल माइंड से उसको सेटल कर देते हैं that this is what we can do, and sometimes we convince ourselves there are certain things that we can't do. So I had a lot of jumbled up thoughts, but yes, one thing about the jata part that
And I have spent like few months in Rishikesh, and I would look at all the sages and all, at that point of time, with whatever grace I had and with all my ignorance, I used to spend a lot of time with them. I would just sit with them घाट पे, just so that कि कुछ भी वो बात करेंगे तो मुझे शायद कुछ मिल जाए, क्योंकि मुझे तब ये लगता था कि पता नहीं मैं क्वेश्चन भी ऐसा कुछ पूछ लूं कहीं नाराज ना कर दूं उनको, because of the whole personality. And I used to get very enamored by them, and I was very new to my spiritual journey, where whatever I was doing with my little understanding I had, and I was to always wonder कि इनकी ये इतनी intact जटाएं ये जो कैसे रहती हैं, मतलब like I used to get very enamored, and I used to feel that कि किसी दिन मैं भी FOMO कि मतलब कि ये मेरे भी कर्ली बाल है किसी तरीके से. I'm sorry, I'm just saying something which is very rooted in matter, but I used to think about that कि तो अब उसका थोड़ा थोड़ा मतलब समझ में आ रहा है कि हर चीज का कितना सिग्निफिकेंस है फ्रॉम द होल एनालॉजी. तो पर यस, रिटेंशन नहीं दीदी, मतलब इतना स्टिल I feel that. So yeah, that was Do you my. have any questions from the last class since you didn't attend? नहीं दीदी, क्वेश्चन तो नहीं है, बट वही है कि I could see the difference that when you don't attend the class, and despite of listening to the recording so many times, it was just I had to pick up again and again from where I left. पहले बड़ी मुश्किल से कमंडल समझ में आया, फिर उसकी क्लेंजिंग समझ में आई, फिर ये समझ में आया कि अब गंगा जी तो आ गई, अब उनको नीचे लाने के लिए भागीरथी. तो for every step of the process, I had to listen to the class again and again, because I don't know, somehow, because it was a very busy, hectic day for me also, I couldn't retain. So I had to go back और loop में कि अच्छा next step क्या है. अब ये तो बहुत मुश्किल है, मतलब everything is so कि वो है. But yes, अनुराग, विवेक, faith, जो general चीजें हम इस क्लास में शायद करते जा रहे हैं, उसका ये it's a nice sum up. It's like it explains the entire process and how every element or every aspect of sadhana put together will give us a ecosystem which will be absolutely clean and wo hai to I'm not there yet, but with few more classes I think I'll do the revision, I'll be able to articulate There it is better. nothing you can achieve by doing sadhana yourself. The only thing is to have preparedness. It will not accelerate your journey towards the divine. Let me make that very clear. You can continue to do sadhana, you can continue to do tirth, you can continue to do vrat, you can continue to do upasana and upvas. It does nothing to hasten your journey towards the divine, because you do not have any journey towards the divine. समझी गुड़िया? तेरी जर्नी है ही नहीं, डिवाइन की जर्नी तेरी तरफ है. The only thing you are doing is preparedness. भगवान किस रूप में आते हैं, किस फॉर्म में आते हैं, ग्रेस किस फॉर्म में आती है, उस समय विपर्याय ना हो, उस समय हम उसको उल्टा ना देखें, उस समय हम उसको डिस्कार्ड ना कर दें. इसके लिए बुद्धि निर्मल हो जाए, इसके लिए पाप हट जाए, इसके लिए दृष्टि मिल जाए. Nothing that I have ever taught you will take you closer to God. That is an individual journey that God takes towards everybody. ये भगवान की जर्नी है, वो हमारे पास आते हैं, उनकी कृपा दृष्टि होती है. हमारी जर्नी नहीं है कि हमने इतने उपवास कर लिए तो अब भगवान मिल जाएंगे. वरना तो कितने लोग कितनी जिंदगी उपवास ही करते रहते हैं, उनको भगवान मिलते क्यों नहीं है? मिले किसी को पूछो, जो करते हैं उनसे पूछो. वो बैठे हुए थे, उनसे पूछ लेते, मिले क्या भगवान, देखा आपने? So remember this, and this is just a general clarification for everybody, not necessarily directed towards Tanya, that anything that we are doing, whether we are doing satsang or we are doing, discussion and Ramcharitmanas or Bhagavad Gita or anything, we do chanting also, we do fast also, anything we are doing is not taking us closer to God. It is preparing us so that
when the divine manifests, when the grace happens, we are able to receive it. हम अपनी पात्रता बढ़ा रहे हैं. Patrata means, patra means a vessel. Patrata means to be the right vessel to receive. Right? Because when God comes, if you are a solid ball of rock, nothing goes inside, right? And who knows, maybe God's come and gone. The door was locked. It was knocked at and knocked at and knocked at, but you had blinders and you had earplugs and you were listening to rock music. And so he turned around and he went. He said, okay, I'll come back. I'll loop around. And it's not that he's not coming again and again. It's just that we are not able to see. We are absolutely unable to see. So our entire effort, everything that we are doing in terms of action, what you call spirituality, practicing spirituality in one which way or the other, is only to prepare ourselves to get the right construct to be able to receive God. You know, same question over and over. God will come in front of you. What will you say? Same question till now. I've been asking the same question from class 1, from when I started. Nobody has an answer. Not one person can say, this is my answer. You may have had iterations of answers, right? Various iterations of various answers. God has come, God has come, God is standing in front of you. What are you going to say? And maybe you are evolved enough or you have learnt enough to not ask anymore for material. Yeah, maybe you are evolved enough to say bhakti and gyan. Maybe. It's various iterations of answers. Have you arrived there yet? Is your man, buddhi, chitta, hankar clean enough to be able to receive God yet? So that is the main issue, Tanya. It is not everything we do. You can say, you can list, because you're a very disciplined person, you're a very Rajasic person, you can list 50,000 things that you're doing every day. तुम संकल्प करके भी कर लो, जैसे अभी शालिनी कर रही. Now, किसी चीज की क्रिटिसिज्म नहीं है, I'm just saying, भगवान की कृपा तुम्हारे एक्शन पे डिपेंडेंट नहीं. उनका आना आपके व्रत उपवास पे डिपेंडेंट नहीं है. जब उनको आना होगा, अगर पात्रता नहीं भी होगी तो भी वो आ जाएंगे. Even if you're not the right person to receive, then God will still come. And वो जब आएंगे तो पात्रता अपने आप ही बन जाएगी, क्योंकि grace will happen. Does that make sense? But does that mean that we do nothing? See, I'm not gonna go visit somebody who I don't know, who has no relationship with me. Right? Am I gonna go out and like, no, they don't live in my neighborhood. They're not from my school. They're not from my college. They're not from like, we have no relationship. Why will I go visit that person? So we want to build a relationship. No, we want to build that relationship. But his presence or his emergence or his darshan is totally his. You cannot move towards. It's not action in vain. We can talk about it again if you so need to. But it does not result in any goal per se. So when you continue to listen to these classes and you think कि दिल्ली दूर है, दूर नहीं मतलब बहुत ही दूर है, बहुत नहीं बहुत ज्यादा दूर है, हम तो दूसरी गैलेक्सी में बैठे हुए हैं.
सो उसमें ये परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने तो जाना ही नहीं है। जिसने आना है वो आए। So don't get disheartened and disappointed and disillusioned that, oh my God, you're not good enough. Oh my God, you're not doing enough. Oh my God, ना तो हमारे पास ब्रह्मा जी का कमंडल है, ना कमंडल में जल है, ना जल में भगवान के चरण है, ना तो चरणामृत है, और फिर भागीरथी की तपस्या भी नहीं है। हम तो सब कुछ अपने आप अपने लिए करते हैं। तो तब तो दर्शन कहाँ से ही होगा, गंगा तो कहाँ से ही आएंगी। हम तो बहुत दूर है, यू नो। यू आई एम श्योर लाइक दिस कैन सीम अ लिटिल बिट daunting and disillusioning, but again, like I said, if it was up to you then it would be hard, but it is not up to you. ये तो भगवान का काम है, वो आएंगे। हमने क्या करना है ना, छोटे बच्चे बन के रोते रहना है। हमसे छोटा नहीं बना जाता। कभी बिल्ली का बच्चा देखो, कहाँ कू 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 कर रहा है, वो ढूंढती ढांढती माँ पहुंच जाती है। We have to become absolutely helpless and helpless, and of course eligible for that. पात्रता होनी चाहिए, बिल्ली का बच्चा होना चाहिए। गाय के बच्चे के पास थोड़ी जाएगी बिल्ली। वो रिलेशनशिप हमने बनानी पड़ेगी, फिर तो भगवान अपने आप आ जाएंगे, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक बेटा। जी दीदी, और and also in one of the classes you said that to relinquish control, and like somebody from my construct who's constantly thinking about action, it is so comforting and so liberating just to remind yourself कि मतलब control बिल्कुल, and you see things like pan out the way they, it almost like You think you it's, you see don't have to things do pan anything. out and the result is absolutely divine, because you yourself would not have ever been able to imagine your life like that, or the outcome like what it is. And from the worst of things, like, you can think constantly this is a tragedy and how it will emerge as the best thing that you can look back at, that happened to you. Like, if you relinquish control, only then. Yes. Absolutely. Yes. Besides the many degrees of freedom. All right. Mrinalini, any thoughts, Gudiya? Namaste, Didi. Namaste. Said it finally. I think something that was a takeaway from last class was to hold on to something like Shivji's Jata. You need Vishwas and Vivek. And so I think those are the two very important things you have to Excellent. believe. Well done, well done. And I think that's the only way to hold on. Just, True. I think keep believing, and keep at it. Excellent. Tabhi you can. Very nice. Excellent. Good takeaway. Shalini, any thoughts, beta? नमस्ते दीदी। Namaste. तो दीदी मेरा भी यही था सबसे बड़ा कि दृढ़ विश्वास, जैसे वैराग्यवती का, तो वैराग्यवती स्टोरीज ऑलवेज अट्रैक्टेड मी बिकॉज like she actually followed the guru tattva within her, even though her guru was a chore, but she just followed him to the T कि पेड़ से बंधे रहना है तो बंधे रहना है, जब तक कि भगवान ने भी आके बोला तो भी नहीं सुना. So that kind of दृढ़ विश्वास. And Same with, like, basically, the other story, Shalini, you remember, of that guy who used to love food? yes गुरु ने दीदी, वो बोला है कि तुम भगवान को भोग लगा के खाओ, तो वो बैठा है भोग लगाने के लिए, हाँ. है ना? और
उसके गुरु के लिए भगवान जी नहीं आए, गुरु जी कितने एस्टॉनिश थे कि उसके लिए उसका इतना निर्मल मन से वो ऑफर कर रहा था कि भगवान पूरे राम दरबार ही वहां पहुंच गया। एग्जैक्टली तो सो आई फील, गो अहेड तो आई फेल्ट कि उससे मेरे को एक चीज समझ आई कि भाई सर कहीं तो झुकना चाहिए, मतलब ईगोलेस स्टेट ऑफ सरेंडर बेसिकली। व्हेन यू हैव दैट and you can follow without putting your mind to it, then I think that at least some part of the job will be done. And people will always tell you, you're absolutely right that log aapko हमेशा बोलेंगे कि you're obsessive, because we all go, I'm sure other people also face this, but when you're on this path, then you're sometimes told that you're doing, I mean, I don't know what you're doing, you're being obsessive, or you're doing too much, or this is not the, I mean, there has to be a limit to what you're doing or whatever. But you have to just stick to your path in your own way and just kind of strike a balance between the material world and this world of yours. You try to strike a balance, Shalini, you will fail because they are two diametrically opposite spaces. There is no way to balance the material and the ethereal. You have to, at some point, find a way to connect the two. Right. Yeah. So Yes. I know your whole life you've tried to strike a balance. And your whole life, I also know you failed miserably. कोई ना कोई हमेशा नाराज रहता है, या तुम अपने आप से नाराज रहते या फिर कोई ना कोई घर में तुम्हारे से नाराज। तो ये बैलेंस पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो इतनी डायमेट्रिकली ऑपोजिट फोर्सेस हैं कि भोग और योग एक साथ कैसे हो सकता है? बैलेंस ही नहीं है उसका कोई। कैसे बताओ? पॉसिबल नहीं है। भोग में योग करो और योग में भोग करो, उसको जोड़ना पड़ेगा। And that's something for you to deeply think about. Yes, Didi. Because this is a very frustrating journey that you've had. All you've done well. I'm not saying you haven't and you haven't achieved, surely, but it still continues to be frustrating at that level. So Yeah. you need to start over and think about it differently. Yes, Didi. For as long as you keep giving yourself the message balance, it is going to fall, you're going to fall flat on your face. ठीक बात है दीदी। Manvi, any thoughts, Gudiya? Pranam Didi. Namaste, Raj. Lot of thoughts are going on, but मेरे को out of the context kind of a thing है दिमाग में, but मेरे को समझ नहीं आ रहा कि संकल्प होता क्या और उसको लेते कैसे हैं। संकल्प होता क्या है? संकल्प सिर्फ मन में ये बोलना कि ये करेंगे। जैसे तुम छोटे थे तो संकल्प करते थे चॉकलेट खाओगे, फिर आगे पीछे मिल जाती थी। जब उससे बड़े हुए तो संकल्प किया कि शादी करेंगे, फिर आगे पीछे शादी भी हो गई, फिर शादी हो गई तो संकल्प किया बच्चे करेंगे, बच्चे भी हो गए, फिर बच्चों की शादी करेंगे, अब तो वो भी हो गया। अब संकल्प ही So चेंज कर देना गुड़िया। is it same as asking something from God or? No, nothing to do with asking. It's what you want to do. What are you offering? What do you want to do is संकल्प। संकल्प किया कि आज खाना बनाएंगे तो खाना बना। So it's had nothing to do with God. Again, like I was telling Tanya, anything you do has nothing to do with God. It is your own purification process. हमने संकल्प कर लिया कि झूठ नहीं बोलेंगे, एक दिन के लिए नहीं बोलेंगे, एक दिन अपने आप को देख लो, है ना? So this is just, संकल्प is only a process
of, okay, I decide I want to do this for my material growth or my ethereal growth, right? And then you go ahead and go about and do it. एंड कभी कभी क्या होता है, संकल्प हम करते हैं और पूरे परिवार वाले उसका भोग ना। संकल्प हमने किया कि हम वेजिटेरियन खाएंगे, तो पूरा परिवार ढूंढ रहा है, भाई इसको वेजिटेरियन खाना खाना है, खराब खाना नहीं खा सकती है, तो इसको अच्छा खाना कहाँ मिलेगा। लगातार एक दौड़ लगी हुई है कि अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढो, अच्छा डिश बनाओ, अच्छा ये करो, अच्छा वो करो, है कि नहीं। तो संकल्प भी बड़े ध्यान से करना कि कहीं उसकी वजह से किसी और को तकलीफ तो नहीं हो रही, क्योंकि संकल्प मन की प्यूरिफिकेशन, आपके चित्त की प्यूरिफिकेशन के लिए है, आपके तन की प्यूरिफिकेशन के लिए है। प्यूरिफिकेशन की जगह जैसे हम लोग उपवास करते हैं ना, नवरात्रे के उपवास, जो तो हल्दीराम में थाली भी मिलती है, वो तो कोई उपवास ना हुआ, है ना। सो संकल्प इज ओनली टू grow yourself either materially or ethereally, and you decide you do something and you go about and doing it, and try to not inconvenience other people while you are trying to achieve yourself. तो दीदी जब हम लोग बोलते हैं कि आप संकल्प लेके ये पाठ करिए या ये हवन करिए, Yeah. उससे खराब कोई चीज हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, बताओ। इतना तो सिखाया तुझे, सारी क्लास तो अटेंड करती है। क्योंकि पाठ और, ईगो, हाँ, पाठ और डिजायर दोनों जुड़ ही नहीं सकते, जोड़ना ही नहीं है। हम बिल्कुल फेलियर हैं अगर हमने पाठ और डिजायर जोड़ दिया। पाठ पाठ का ऑब्जेक्टिव है डिजायर से हमको फ्री करना है। अब आपने पाठ में डिजायर जोड़ दिया और अपना भी नहीं, किसी और का जोड़ दिया, ये भी करती हैं माताएं, है ना। बच्चे तो करेंगे नहीं, तो ऐसा करते हैं हम संकल्प करके, इसके नाम का एक, इसके नाम का एक, इसके नाम का एक, इसके नाम का एक। अब जो, अगर माता विवेक से सोचे, तो बुद्धि से सोचे, अपनी विवेक बुद्धि से सोचे, इफ द मदर इज एबल टू थिंक, your job in the world is not to provide for material gratification of your children, because if you do, they are only going to get looped up in this cycle of desire, which is absolutely endless and absolutely unrewarding. बच्चे को हारना सिखा दो, छोड़ना सिखा दो, वैराग्य सिखा दो, ये बहुत अच्छा होगा, ये अच्छी सीख है, 4 जन्म तक साथ में जाएगी। समझी गुड़िया। So as a mother also, you have to redefine what do you want for your kids. Do you want them to be contented human beings, or do you want them to be running the rat race? Do you want them to be filled with envy or filled with gratitude? You decide as a mother what you want for your child. Or your significant other, or whoever else. जिस संकल्प का आप बात कर रहे हैं, उस संकल्प के संदर्भ में बता रहे हैं। जो अगर कोई, बहुत लोग अपनी हेल्थ के लिए भी संकल्प लेते हैं, तो वो भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इट्स द सेम थिंग इज डिजायर, राइट। बेटा बहुत जब कोई कमी में पला होता है, उससे चीजें फेंकी नहीं जाती, है ना। तो वो संजो संजो के रखता है। People hoard things and sometimes they will, like, अगर मेरी कोई चीज फट जाए तो मुझे माँ के पास जाना पड़ता है, क्योंकि शी डज नाइस रफू जॉब। आई कांट डू इट। मेरी कभी वो मनोस्थिति पैदा ही नहीं हुई, डेवलप ही नहीं हुई, जरूरत ही नहीं पड़ी। बट कभी एक आधी चीज कोई मेरे को बहुत प्यारी लगती है, उसमें रफू
माँ के पास जाना पड़ता है। उसकी प्रवृत्ति है ऐसे ठीक ठीक करके जोड़ जोड़ के चलाने की। मेरी बचपन से प्रवृत्ति है जो चीज ठीक नहीं है वो फेंक दो, जो चल नहीं रही है उसको खत्म कर दो, उसके साथ स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। पर आपने अपने घर में ऐसे लोग होते हैं अलग अलग प्रवृत्ति के, एवरीबडी इज डिफरेंट। Like my father will continue. I have told him 1001 times, let's change the washing machine. वो फिर बुला लेते हैं वॉशिंग मशीन का बंदा। ठीक नहीं हो सकती एक दिन के बाद, एक बार के बाद, 4 बार के बाद, कितनी बार पैनल चेंज कराओगे? जितने की मशीन नहीं है उससे ज्यादा का तो आपने इसमें लगा दिया, उसकी इतनी वैल्यू ही नहीं है। तो बेटा हेल्थ में, उस हेल्थ के बारे में आपने पूछा था, हेल्थ ही बता रही हूँ। ये शरीर किस काम के लिए है? इस शरीर से हमने भगवान का ध्यान करना है, साधना करना है, उपवास करना है, डिजायर से अपने आप को छुड़ाना है, कर्म अपने खत्म करने हैं। शरीर का ही डिजायर डाल दो उसमें आगे, फिर क्या फायदा हुआ राजे? आप बुद्धिजीवी हो ना। आदमी शरीर के लिए तब करता है जब उसे डर लगता है, और डर तो अच्छी बात है ही नहीं। मैंने तो कभी सिखाया ही नहीं कि डरना अच्छी बात है। जितना हम कर सकते हैं 110 मेहनत करो, और उसके बाद हरी इच्छा। और जैसे रखे वो वैसा ठीक। डायबिटीज में रखे, हार्ट डिजीज में रखे, हम जितना कर सकते हैं उतना कर लें। 2 माला एक्स्ट्रा करने से आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाना है क्या? बताए कोई मुझे। वो तो उपवास करने से कम होगा, तो वो तुम अपना 110% करो। और जो उपवास करता है उसको कोलेस्ट्रॉल होगा ही नहीं। जितना हम चला सकते हैं शास्त्र के हिसाब से, जितना हमें या गुरु के हिसाब से जो आपको सीख दी जा रही है, अगर वो 110% आप फॉलो कर रहे हो, और फिर भी शरीर में कुछ तकलीफ आ गई है ना, फिर भी आपको किसी व्याधि, कोई डिजीज आ गई है, तो ये तो हरी इच्छा है। कुछ सीखना होगा इससे, कहीं जाना होगा। मैं तो कितनी बार एग्जांपल दे चुकी, अगर मुझे थायराइड नहीं होता मैं योगा कभी ना कर पाती। If I hadn't had thyroid disease, Hashimoto, I would have never been able to discover yoga and the immense benefits and help so many other people. It's not like I've kept it to myself. If I hadn't had the loss of my brother, so many people would not be able to talk to me about death because I would have no idea where they're coming from. I wouldn't even know. You can't imagine what it's like walking in somebody's shoes unless you really don them. So अगर कुछ हो ही गया है तो उसमें भी हरी इच्छा है, उसके लिए 2 माला एक्स्ट्रा करके कुछ नहीं होने वाला बेटा। रफू करना छोड़ दो और उसको समझो कि ये यहाँ पे जी होल किस लिए हुआ है। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? बराबर का सौदा है, बनिया है ना तू। जितना मैं दे रही हूँ उतना वापस देना मुझे वापस। All right. मोनिका थॉट्स गुड़िया? Namaste, Didi. नमस्ते गुड़िया। I think everyone has articulated so beautifully, but that one thing which stayed with me when I keep on going back to the metaphor of the Kamandal, which is you've compared to the brain, and the Jal inside it, which is our Nirmal Buddhi, and the fact that you do need the Bhagirathi sadhana to bring it out and to capture it. For me, I fail to go beyond the sadhana part because somewhere my mind is, maybe it's not nirmal enough. And today you said a very beautiful thing that
are we worthy recipients of, even imbibing that grace? Sometimes, you have to just surrender. And whilst you're discussing it, when you said that do all your actions without really thinking about, so even if we pledge or we do a sankalp, like a lot of people, we've been talking about this for the long, and I wasn't a part of it, but I sort of connected the dots and figured out what a sankalp could possibly imply. So, being a working person and whatever, hustling, sometimes you are able to complete your sadhana, sometimes you aren't. But in my head, that war is always going on, that okay, whatever best I can do, even if I get that 5 minutes extra, I will push myself to, complete as much as I could during that day. But that's digressing from what I was trying to tell you about the Kamandal. So when you said that people will question why you have chosen to follow this path, why are you doing things despite having so many other responsibilities or duties to fulfill, that really interested me, because I feel to keep that, to be that recipient, to keep the Kamandal in that state of Nirmal Jal, we need to actually take away these thoughts and not get bothered by what the external world is trying to push into us, constantly. And staying true, and I don't beat myself. Like, I try to do a Monday fast as much as I can. There are days when I really cannot control my hunger. It never used to happen, but lately it's been happening, As It's you grow menopause. older, it becomes harder to fast. It becomes harder, right? So there are times when I'll say, "Acha, abhi 6 to baje nahi hai, to what if I eat a little bit earlier today? What if I eat at 5?" So I tell myself, it's okay. I'm not killing myself. I've done the fast till the best of my ability, and then I eat that meal, which I'm supposed to eat. So I'm looking forward to it the whole day. ये तो अच्छा है, पर उसको करने का तरीका ये है कि हाँ, अगर 5 बजे भूख लग जाए तो हाँ, फर्वेंटली भगवान से पूजा करना शुरू करो। भैया, भगवान डिस्ट्रैक्शन निकाल दो कहीं से। अगर हाँ, 1 घंटे का काम और कहीं मेरे को बिजी कर दोगे तो भूख नहीं लगेगी। इस नहीं बार लगी। अगर आपने खाली छोड़ दिया तो देखो कितनी Correct. भूख लग गई। मेरे को I agree. सेवा में लगा के रखो, जिससे कि मुझे भूख और प्यास पता ही ना चले। उपवास तो Exactly. तभी हो And that, सकता है, वरना उपवास नहीं हो सकता। अपने I मन agree. से, अपनी इंद्रियों से कोई नहीं लड़ सकता। Yeah. And बड़ी it's लाइन लगानी पड़ेगी बेटा, हर जगह बड़ी लाइन लगानी पड़ेगी। Bilkul. And it's interesting that you brought this up, because there are days, except for Monday, any other day you tell me, you ask me about food, I'm not even interested in talking or thinking about it. But it's only on the day that you're fasting that the only thought that occurs after 4 p.m. is, okay, how much time left to eat? So it's like, and then, but what I've started doing is I've stopped beating myself over it. कि ठीक है, जितना कर पा रही हूँ, कर रही हूँ. I'm trying to get there. And I think this is a very good tip that, you instead ask God that please give me the grace to control my senses and to, जब भगवान आपको ये भगवान ने आपको ये सद्बुद्धि दी, संकल्प दिया, तो पूरा करना भी उसी का काम है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा काम थोड़ी है हम सोचें कि हम फास्ट करें, तो पॉसिबल नहीं है। नहीं है, आई एग्री। एक तुलसीदास जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं। वो बोलते हैं, भगवान आप बहुत कृपालु, आपने इतनी कृपा करी, इतनी कृपा करी कि पहले तो मानव शरीर दे दिया। यू मेड मी अ ह्यूमन बीइंग। क्योंकि पहले मैं अगर जानवर था, गधा था, घोड़ा था, चिड़िया थी, चूहा था, उसमें तो क्या ही पुण्य किया होगा मैंने। कोई पुण्य तो किया ही नहीं होगा कि मानव शरीर। आपकी असीम कृपा है, इतनी ज्यादा कृपा है कि आपने मुझे मानव शरीर दे दिया। और मानव शरीर क्यों कृपा है? क्योंकि मानव शरीर साधना का एक स्थान है। साधना करने के लिए ये शरीर का होना जरूरी। इफ यू डोंट हैव अ बॉडी, हाउ विल यू डू sadhana? Not possible. If you don't have a mind, how will you wrap your head around the Ram Katha और भगवत गीता और whatever? तो इतना आपने ब्यूटीफुल स्थान दिया जहां बुद्धि भी है, शरीर भी है, हाथ पांव ऐसे हैं कि यू रिमेम्बर दिस फ्रॉम योर एवोल्यूशन,
कि ये अंगूठा इस तरह से जेक्स्टापोज्ड है कि हम चीजें पकड़ सकते हैं, आरती की थाली, प्रसाद का, भोग का, सब सामान। सबसे अच्छा काम किया भगवान, आपने मुझे मानव शरीर दे दिया, और ये किसी मेरी पुण्य की वजह से आपने, आपकी असीम कृपा है कि अपने आप ही आपने मुझे मानव शरीर दे। सो तो ठीक, इतनी बड़ी कृपा करी प्रभु ने, इतनी बड़ी कृपा करी, मानव शरीर दे दिया, अब इसको कैसे वापस कैसे करूं? इफ यू टेक अ लोन फ्रॉम समबडी, if it is a reasonable amount of loan, like how Piyush takes, then he's able to return it in 2 or 3 or 4 years, whatever. हम्म इसको थोड़ा बोल दो कि थोड़ा ज्यादा ले ले बेटा, सोच मत उसके बारे में, हो जाएगा, तो इसके हाथ पांव फूल जाते हैं। पर अब भगवान ने तो अपनी कृपा कर दी, इतना बड़ा लोन दे दिया, चुकाने का कोई इसका तरीका नहीं है ना? तो अब क्या करें? चुकाने का कोई तरीका नहीं है, तो भगवान, मैं, आपने पहले ही कृपा करी हुई, आप वैसे ही इतनी कृपा करते हो। ये तुलसीदास जी का कथन है, वन होल एंटायर डायलॉग दैट ही शेयर्स इन वन ऑफ हिज पब्लिकेशन। इसे आप ऐसे इतनी कृपा करते हो, इतना तो आपने दे ही दिया, चुका हम सकते नहीं, है ना? इतना ज्यादा दे दिया है कि चुका हम सकते नहीं, तो ऐसा करो थोड़ा और दे दो। तो चुका ही नहीं सकते, तो भगवान ऐसा करो, इतने पे क्यों रुक गए आप, थोड़ा और दे दो। क्या दे दो? तो मैंने सुना है कि मन अगर एक स्थान पे स्थिर हो जाए तो आप तक पहुंच सकता है, समाधि मिल सकती है, इस जंजाल से छूट जाऊंगा। मन अगर एक स्थान पे स्थिर हो जाए, अगर इफ द मन, आपका, इफ यू हैव वन पॉइंटेड माइंड, देन यू कैन अचीव द स्टेट ऑफ समाधि, करेक्ट? योगा सूत्रा भी यही बोलते हैं। तो तुलसीदास जी बोलते हैं कि प्रभु, मैंने सुना है कि मन एक जगह हो जाए तो समाधि मिल जाती है, और मेरा मन तो बड़ा चंचल है, और आपने दे भी दिया है इतनी कृपा से, शरीर भी और मन भी। तो आप एक काम करो, मैं तो स्थिर नहीं हो पाऊंगा, आप ही स्थिर हो जाओ, और मेरे इधर उधर घूमते हुए मन को आप ही पकड़ने की चेष्टा करो। यू ओनली ट्राई टू होल्ड। कैसे? जो मेरा इधर उधर जा रहा है मन, है ना, सारी वासनाओं में लगा हुआ है मन, भगवान आप ही इसको पकड़ो, इतनी कृपा करो। पहले तो आपने शरीर दिया, शरीर के साथ ये मन दिया, ये बुद्धि दी, इसको कंट्रोल करना भी मेरे बस की बात नहीं है, आप ऐसा करो, ये भी आप ही करो। कैसे करो वो भी बताते हैं। ऐसा करो, मेरे मन को मछली मानो, और एक कोने में बैठ के, जैसे मछुआरा वेट करता है ना कि मछली पकड़ी जाएगी, बेट लगा के, तो एक कुछ बेट लगा दो, आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बेट लगा दो। तुलसीदास जी बोलते हैं बंसी की बेट लगा दो। जैसे ना, यू सी, यू हियर द स्टोरी ऑफ बैक पाइपर एंड एवरीबॉडी फॉलोइंग देम, तो बंसी की बेट लगा दो, और बेट लगा के आप वेट करो, और वेट करके मेरे मन को पकड़ो, और कहीं भगवान बोले कि तुलसीदास ज्यादा नहीं हो गया, पहले ही तुम्हें मैंने शरीर दिया, उसके बाद तुम बोल रहे हो कि मैं ही पकड़ूं तुम्हारे मन को, और मैं ही बांधूं, और मैं ही एक चित्त कर दूं उसको, ज्यादा नहीं हो गया? तो तुलसीदास जी उसका जवाब देते, बोलते भगवान ऐसी कौन सी बड़ी बात है, एक मेरा छोटा सा मन है, आप तो खेल खेलते ही रहते हैं। आपने कभी रावण को पकड़ा, कभी मेघनाथ को पकड़ा, कभी इसको करा, कभी उसको करा, आपने कभी मछली पकड़ी है? मेरे मन के बहाने आप मछली का खेल भी खेल के देख लो, आपका खेल हो जाएगा, मेरा काम बन जाएगा।
सो भगवान ही करें, संकल्प तुम्हारा, और पूरा भी भगवान ही करें, और उसको बोलने में संकोच नहीं होना चाहिए। संकल्प मेरा, मेरी बुद्धि की प्रॉब्लम, और भगवान आप ही ठीक करो। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। मुझसे ज्यादा दीन कोई है ही नहीं। जब तक अपने आप को छोटा नहीं बनाएंगे, जब तक अपने आप को बच्चा नहीं बनाएंगे, तो ये ख्याल मन में कैसे आ सकता है? किसके मन में आया आज तक? क्या विचित्र, वेरी स्ट्रेंज एनालॉजी, वेरी स्ट्रेंज एग्जाम्पल। तुलसीदास जी का क्या तो डायलॉग है, भगवान से क्या तो बोल रहे हैं कि भगवान पहले ही कृपा कर दी। अब इतना लोन हो गया कि चुकाना तो क्या, दिवाला ही निकलेगा। अब दिवाला तो निकलेगा, पर निकलने से पहले एक काम तो करो, आप मेरा मन पकड़ लो, मुझे समाधि तक तो ले चलो, फिर निकले दिवाला। सो इट्स इंटरेस्टिंग। सो उपवास करना है, उपवास करो, नहीं होता है तो भी भगवान के सर पे मर दो, नहीं भगवान ने नहीं कराया, उसकी गलती है। पहले प्रेरणा दी करो उपवास, फिर पूरा भी नहीं कराया। अब ऐसी प्रेरणा क्यों देते हो भगवान जो हम हार जाएं? अब ये तो रिलेशनशिप की बात है ना। अगर हमने रिलेशनशिप बनाई भगवान से तो हम लड़ सकते हैं। हमने रिलेशनशिप ही नहीं बनाई तो हम क्या तो बात करेंगे भगवान से, और क्या तो मांगेंगे, और क्या तो लड़ाई करेंगे। Alright. निरंजन, एनी थॉट्स बेटा? Not really. Everything has been covered. Pranam, Didi. प्रणाम। The one thing is, so the thing that we lack is complete faith. But then, other than that, the fact that we are in this class means that we are getting the Ganga on us, right? बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल सही बात है। यू आर, लेट मी एक्सप्लेन दैट। इसका एक जो क्या कहते हैं उसको, भावार्थ, भावार्थ का इंग्लिश क्या होता है, वॉट एवर। सो एक राइटर ने बहुत अच्छा इसका इंटरप्रिटेशन किया। उन्होंने बोला कि नदी बनने के लिए जल चाहिए, है ना? और जल कहाँ से सबसे आसानी से मिलता है? यू स्टेड अराउंड द कोस्टल एरिया, इट्स वेरी इजी। इफ यू आर अराउंड अ कोस्ट, rain is never a problem, right, Mrinalini? Rain is never an issue. Why? Because the clouds will carry the water vapor and have the rain fall on you. तो उन्होंने उसको ये बताया कि देखिए, ऐसे तो संसार में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा, वेद हैं, पुराण है, भगवत गीता है, इतनी सारी नॉलेज है। सारी नॉलेज तो हम ले नहीं सकते, और सारी नॉलेज पॉसिबल नहीं है कि हमारे अंदर समा जाए। इतना सारा जल है, उसको उन्होंने उपमा दी जल की, कि इतना सारा जल है, सारा तो हम ले नहीं सकते। हमने थोड़ी बहुत अपनी कैपेबिलिटी की तरह से हम वो जल लेते हैं। अगर उसको डायरेक्टली पीने भी लगते हैं तो क्या होता है? कभी समुद्र का पानी पिया किसी ने? क्या होता है? पी सकते हैं क्या? कैन वी ड्रिंक इट? इज इट पॉसिबल? We cannot sift through it enough
फॉर आवर पैलेट इट इज नॉट पैलेटेबल। तो वेद और पुराण और इतिहास हम अपनी पैलेट से अगर उसको पीना शुरू करें तो, बचपन में पढ़ी किसी ने रामायण? हाथ खड़े करो। अच्छा, अमर चित्र कथा पढ़ी हो? है? मैंने पढ़ी थी। महाभारत है, हमारे स्कूल में लगी हुई थी एक संक्षिप्त रामायण संक्षिप्त महाभारत। और पता है कहाँ जाके, ऑनेस्ट कन्फेशन, जो महाभारत का द्रौपदी का चीर हरण का चैप्टर था ना, वो मैंने 5 बार पढ़ा। इतना रस आया मुझे उसमें। तो अब महाभारत ही पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, या कभी कोई बैठ जाओ किसी संत के साथ, जो मतलब कोई किसने बोला था, मेरे आज है नहीं, क्या, सोनल कहती है मेरे पास चारों वेद की किताबें हैं, पढ़ ले फिर। एक दोस्त आया मेरा, बोलता है मेरे को वेद पढ़ना है। मैंने कहा पढ़ ले फिर, आराम से अवेलेबल है, पढ़ लो, कौन समझ में आने वाला है। इट्स नॉट पैलेटेबल। किसी को समझ में आता है क्या? और अगर गलती से कहानी रूप में भी है तो उसमें भी हमें वासना दिखती है, वहीं पे अटक जाते हैं हम, आगे कुछ दिखता ही नहीं, चरित्र तो दिखता ही नहीं। तो समुद्र के जल की तरह हमारा सारा शास्त्र है, और शास्त्र को संतों की अपार कृपा है कि शास्त्र को वो मेघ की तरह अपने अंदर ले लेते हैं। जैसे क्लाउड्स होते हैं ना, क्लाउड्स वाटर वेपर, उसमें से निकाल के वाटर में से, समुद्र में से निकाल के वाटर वेपर क्लाउड्स बन जाते हैं। और वो क्लाउड्स जब गिरते हैं तो मीठा पानी गिराते हैं, पीने लायक, पी सकते हैं, है? तो अब प्रॉब्लम ये है कि पानी हर जगह समान तो गिरता नहीं है। बारिश तो कितनी हुई दिल्ली में आजकल, बॉम्बे में भी हुई होगी। तुमने बाहर निकल के पानी पिया? दिक्कत ये है कि वो सारा गिर जाता है। और जब वो संतों का पानी गिरता है, जिस धरती पे गिरता है उसका रंग वैसा हो जाता है, वो साफ गिरता नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? एक क्लीन बेटा, वेसल चाहिए, सॉलिड वेसल चाहिए ना। पर खाली अगर कंक्रीट पे भी गिरेगा तो रुकेगा क्या? कंक्रीट पे भी गिरेगा तो रुकेगा क्या? बह जाएगा। तो ना, सॉलिड भी चाहिए, क्लीन भी चाहिए, डीप भी चाहिए। ये 3 क्वालिटीज अगर रहेंगी तब वो पानी आप पी सकते हैं, वरना मेघ बरसते रहेंगे, पूरा श्रावण निकल जाएगा, आप शिव जी का अभिषेक भी कर लीजिए, आप प्यासे के प्यासे ही रह जाएंगे। तो क्लास में आना बहुत अच्छी बात है, पर उसमें से क्या लेके जा रहे हैं हम, उसके लिए जो पात्रता चाहिए बेटा, वो धीरे धीरे बनेगी, धीरे धीरे बन के। जो लोग 5 साल से क्लास सुन रहे हैं, मैंने 5 ही साल पहले फिलोसफी पढ़ाना शुरू किया, इससे ज्यादा नहीं हुए मुझे टाइम। कितना टाइम हो गया मृणालिनी? व्हेन वाज द फर्स्ट क्लास आई स्टार्टेड टीचिंग? सौंदर्य लहरी। कौन है सबसे पुराना यहाँ पे? I think you had started with Vishwani, but we had done a few Saundarya Lahiri when you used to visit California. So maybe 2015, 16. चलो 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से अगर मैं सिखा भी रही हूँ तो किसके अंदर गुण है कि कलेक्ट कर ले? ये तो आप, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो 8 साल से भी क्लास में आ रहे होंगे, मिल रहे होंगे, प्रवचन सुन रहे होंगे। एक के साथ तो तुम रहते ही थे, तुम्हें पता होना चाहिए। बुद्धि बदलते बदलते बेटा टाइम लगता है।
इसका कंक्रीट बनना, कंक्रीट के साथ सफाई रहना, सफाई के साथ डेप्थ रहना, ये पूरा अचीव करते करते टाइम लगता है। और हम तो इतने stubborn है कि हम तो वेट करते हैं जो ऊपर से पानी गिर रहा है यही अपनी जगह बना ले खुद, है इतना गिरे कि यही होल कर ले, यही रह जाए यहाँ पे, पर ना पॉसिबल नहीं है। मेघ इतनी वेग से नहीं गिरते कि वहां पर जगह बन जाए आपके कलेक्शन के लिए। Does that make sense? Yeah, it is. Yeah. Okay. So yes, you coming to the class is, yeah, kudos to you. You taking notes, very nice. Putting it into practice and carrying it with you, complete different ball game. It'll keep you coming back, and hopefully you will not get deterred in any which way and distracted, and over a period of time you'd be able to build the vessel that is required to hold this knowledge that is flowing. And then I am so minuscule in doing this, right? Really small. हमारे जिस जिस जो भी चीज देखो, भगवत गीता के कितने, अगर आप भगवत गीता लेने जाओ मार्केट में, गूगल सर्च कर लो, इंटरप्रिटेशन बाय स्वामी दिस, इंटरप्रिटेशन बाय स्वामी दिस, इंटरप्रिटेशन बाय स्वामी दिस, इंटरप्रिटेशन बाय स्वामी दिस, कितने 500 किताबें होंगी, अगर कम नहीं होंगी कम से कम। वो तो दैट इज फ्रॉम दिस जनरेशन। और पुराने शास्त्र उठा के देख लें हम, तो कितने लोगों ने भावार्थ लिखा है भगवत गीता का। कितनी तो रामायण है, 1 मिलियन रामायण, 1 मिलियन, इतनी रामायण है। तो कौन सा राम राज्य आ गया? तो उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना बेटा, बेसिक रिक्वायरमेंट इज, of course it is to show up, that is step 1, but it requires 3 characteristics. 1, you have to have a solid material for your vessel. You have to have a clean vessel, and you have to have depth in your vessel to be able to hold something in. The solid material comes from faith. If you have deep faith, the deeper your faith, the harder your vessel. Now, in that also, what happens is that अगर faith, जैसे हम बचपन से, हम तो सब बच्चे, हम बचपन से पूजा कर रहे हैं, कोई faith नई चीज है हमारे लिए। हम तो विश्वास, we belong to an entire generation, era, family of believers, right? Yes, no, maybe. हम तो हमें बचपन से पूजा पाठ करना सिखाया जा रहा है। हमारे घर में पूरा पूजा पाठ होती थी, हमारे सोसाइटी में होती है, हमें तो बचपन से ही सिखाया जा रहा है, करेक्ट। मगर वो विश्वास जो हमें जोड़ा गया, उसकी कोई रियलिटी नहीं है। जो फेथ है ना हमारे अंदर, जिसको हम फेथ बोलते हैं, जिसको हम अपना फेथ बोलते हैं कि हमें विश्वास है, हम इसको मानते हैं, जो हमारा मानना है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? किसी की बताई हुई बात पे। माँ बाप ने सिखाया, गुरुजनों ने सिखाया, जैसे मैं भी अभी सिखा रही हूँ, तो आप मेरी बात मान लो, तो इससे कंक्रीट का वेसल नहीं बनेगा बेटा। ये तो मानी हुई चीज है। जब कन्वीनियंस हुई, मुझसे लड़ाई की, तो फेथ भी चला गया। तो ऐसा फेथ जो किसी भी चीज पे डिपेंडेंट हो, उसको तो हम सॉलिड नहीं बोल सकते ना राजे, दैट इज नॉट सॉलिड।
भगवान मेरा काम कर दो, भगवान ने काम नहीं किया, फिर फेथ चला गया। भगवान इस बीमार को ठीक कर दो, बीमार और बीमार हो गया, फेथ चला गया। भगवान मैं 16 उपवास करूंगी, नौकरी दिला दो, नौकरी नहीं मिली, उपवास खत्म। ये फेथ जो किसी से बात सुन के बने या किसी डिजायर से रिलेटेड हो, जब बोलने वाला आपकी नजर में गिर जाए या डिजायर आपकी पूरी ना हो, ये तो सॉलिड ग्राउंड नहीं है ना फेथ का। ये तो खत्म हो सकता है ना। जिस दिन मुसलमान घर पे आ गए तलवार लेके, तू बोल अल्लाह अकबर, कितने कन्वर्ट हुए? 90% कन्वर्ट हो गए ना, 99 कन्वर्ट हो गए होंगे बेटा। 1 ही % बैठा होगा, काट ले सर बात, दोबारा आ जाएगा। Again, I'm not saying, not to say that that is not a faith worth following. Just saying you have to have a deep, 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 solid construct in your faith. It should not be dependent on your material, physical, emotional, social situation. Right, Suruchi? Thoughts? Are you trying to find the unmute button or not listening at all? You have a thought, Shalini? Does that make sense to everybody? Yeah, so when I say शिवजी की जटा, शिवजी की जटा का मतलब दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास कैसे आएगा? दृढ़ विश्वास किसी और की बात पे नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी हो। भगवान भी बोले मैं भगवान हूं तो आप मान नहीं सकते भगवान, तब भी बोलोगे भगवान चमत्कार दिखाओ तो मानो। और जो एक दिखाया तो बोलोगे भाई दूसरा भी दिखा दो फिर, और दिखाते रहो जिससे मैं मानता रहूं। तो ये फेथ है क्या? यही तो है, यही तो हमारी कॉन्वर्सेशन है भगवान के साथ। एक दिखाओ, उसने एक दिखा दिया, किसकी लाइफ में एक नहीं दिखा चमत्कार? हाथ खड़ा करें। एक के बाद तुम रुके क्या? मान लिया तुमने, दूसरे के लिए किसने हाथ खड़ा नहीं किया? और भगवान ये भी दिखा दो, फिर ये भी दिखा दो, फिर ये भी दिखा दो। ऐसा ग्रीडी आदमी, इसको फेथ बोलते हैं क्या? दिस इज ट्रांजैक्शनल बेटा, दिस इज नॉट फेथ। सो ये हुई कॉन्क्रीट। अब कॉन्क्रीट कैसे बनेगी वो भी समझें आप लोग। कॉन्क्रीट तब बनेगी जब आपका विश्वास, आपका फेथ आपकी नॉलेज में रूटेड है। नॉलेज कैसे आएगी? व्हेन यू नो व्हाट गॉड इज लाइक। वो कैसे आएगी अभी बताया ना। संतों के साथ बैठते रहो, वर्षा होती रहेगी, धीरे 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 पक्का होगा। भगवान क्या है, भगवान का चरित्र कैसा है, भगवान कौन है, अब मूड बुद्धियों की तो कोई कमी नहीं है। मूड बुद्धि, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं। और हनुमान जी के भक्त ने क्या किया? बोला राम की तो कोई औकात ही नहीं है। अब बताओ, बतेरे मिल जाएंगे आपको, कोई कमी नहीं है ऐसे मूड बुद्धियों की। जिन हनुमान जी ने अपना नाम नहीं लिया कभी, उन हनुमान जी का नाम लेते हुए
जो लोग ऐसा सोचते हैं सो भगवान को जानना इसलिए कथा, जहां कथा होती है वहां भगवान को धीरे 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 हम जान लेते हैं और धीरे 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 दृढ़ विश्वास आ जाता है। जानने के बाद दृढ़ विश्वास, नॉट बिकॉज somebody told me or there was some lollipop dangling in front of me, it's because I have heard it again। भगवान मैंने आपकी कहानी बार बार सुनी, बार बार सुनी, बार बार सुनी, बार बार सुनी, और सुन के मेरे मन में आपकी एक छवि बैठी है, और उस छवि में, मेरे मन की छवि में, मेरे मन के अंदर जो बैठा है वो बहुत करुणा से भरा हुआ है, वेरी गिविंग, वेरी जेनरस, वेरी ब्यूटिफुल, और मैं तो उसको नहीं छोड़ूंगा। तब बना, तब राधा बनी, तब कबीर बने, जिन्होंने पकड़ लिया अपने मन की छवि को। तब बना दृढ़ विश्वास, तब बना कॉन्क्रीट। अभी कॉन्क्रीट ही बना है, इसमें सफाई नहीं हुई। सफाई तब होगी जब आप अपने आप को डिजायर से खाली कर दोगे। रिलेशनशिप तो बना लिया अंदर और चाहिए बाहर। तो तुलसीदास जी की तरह ये नहीं बोले भगवान हमें पकड़ लो, आप ही पकड़ लो। तुलसीदास जी की तरह बोले भगवान आप पकड़ भी लो आप, और ऐसा करो, ऐसे पॉन्ड में छोड़ना जहां सब कुछ मिलता हो, कोई दुख ना हो, कोई कमी ना हो, है ना। हेल्थ ही हेल्थ हो। तो ये नॉर्मल आदमी का रिलेशनशिप। सो खाली करना पड़ेगा, डिजायर हटा दो। डिजायर हटाने के बाद भी वेसल बना क्या? अभी क्या चाहिए उसमें? डेप्थ चाहिए। वेसल बनाने के लिए तो डेप्थ चाहिए ना, उसके बिना वेसल कैसे बनेगा? डेप्थ तब आएगी जब उससे हार्ट जुड़ेगा। खाली चरित्र जान के आपने अंदर अपने ज्ञान तो बिठाया, पर उससे कोई रिलेशनशिप नहीं बनाई। अब उससे हार्ट जोड़ो, तब उसमें डेप्थ बनेगी, तब पानी रुकेगा। तो अब मैं इसको नकार नहीं रही हूँ कि आप रामचरितमानस की क्लास में आते, बहुत अच्छा करते हैं, हर क्लास में आइए, सारी क्लास सुनिए, एक बार नहीं 5-5 बार सुनिए, मगर जल जो गिरे, चाहे कुछ भी हो, थोड़ा भी गिरे, तो वेसल तो हो, या वेसल बनाने की प्रक्रिया तो हो, प्रोसेस तो हो। अब सोचिए शंकर जी का दृढ़ विश्वास, भगवान शंकर का दृढ़ विश्वास, क्या क्या लगता है उसमें। लगातार कथा सुनते हैं, कथा प्रेमी है, कथा सुन के भगवान का चरित्र मन में बसाया हुआ है। अंदर ही पता है भगवान कैसे हैं। माता सती ने भी कथा सुनी, पर वो कथा कहाँ गई? वही संत के मुंह से कथा सुनी। कथा तो तब बनेगी ना अच्छी, जब अंदर कोई होगा जोड़ने के लिए उससे, विश्वास का पात्र होगा। तो उन्होंने कहा मुझे तो डाउट है भगवान है भी कि नहीं। आप अगर अपनी पूरी जिंदगी उधेड़ के देख लो, 90% तो आपको डाउट ही रहता है, कोई एक भी नहीं है जिसको फेथ हो। सब कंडीशनल है। मेरी बात सुनो तो मैं आपकी बात सुनूं।
उल्टा बोल के देख लो किसी से, वरना पर हम तो बचपन से ही उल्टा चल रहे हैं, तो हमें आती है ये भाषा। भगवान सीधा चलो कि उल्टा चलो, हम चलेंगे साथ। Does that make sense, बेटा? You understand? बहुत देर हो गई, आई एम रियली सॉरी, बहुत देर हो गई। चलो, आई स्टॉप हियर। वी बट आई एम श्योर यू अंडरस्टूड द एनालॉजी। वो शिव जी की जटा की जो बात थी, वो समझ में थोड़ी आई होगी आप, है ना? क्योंकि शिव जी का जब स्वरूप हम बोलते हैं, एक तो वो ज्ञान स्वरूप है। जैसे दक्षिणा मूर्ति हम पूजा करते हैं, ज्ञान स्वरूप है शिव जी। ज्ञान स्वरूप इसलिए है, नॉट बिकॉज ही नोज समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, ही हैज नॉलेज इनसाइड। या और जब हम देखते हैं कि उनकी पत्नी कौन, भक्ति स्वरूप। पत्नी मतलब शक्ति, शक्ति कौन? शिव जी की शक्ति क्या है? भक्ति। सो शिव जी ज्ञान स्वरूप है, शिव जी की शक्ति ही भक्ति है, और कुछ है ही नहीं। और और विश्वास, विश्वास का स्वरूप, फेथ। सती माता चली गई तो शिव जी समाधि में चले गए। वापस भगवान से जुड़ गए अपने अंदर अंदर। So when you look at the symbology of Lord Shiva, remember these three things. What are the three things? What are the three? Gyan. Gyan kaun sa? Qualification of Gyan, not something you've heard from outside, something that you know from inside. Some of your best decisions, in whatever you do, you'll get a gut feel this is the right thing to do. Whether it is financial or design or no, it feels right. It sounds right. It seems right. I've lived my whole life like that. I could never understand grammar. I understood the languages by, oh, it feels right. Because बुद्धि तो मेरी बचपन से नहीं चली, अब कहाँ से चलने वाली है? सो अंदर के ज्ञान से जितना यहाँ तक पहुंचे कि आप बात भी सुन रहे हैं, वो उसी वही अंदर का ज्ञान बता रहा है बोलना भी कैसे। सो दैट फील्स राइट वाला ज्ञान जो है ना, तो ज्ञान। दूसरा भक्ति, श्रद्धा और भक्ति। और तीसरा विश्वास। जब ज्ञान और भक्ति आ जाएंगे तो विश्वास कहाँ जाएगा? विश्वास तो आ ही जाएगा। ज्ञान इज द कॉन्क्रीट, bhakti is the depth, so automatically the vessel is there. Faith will automatically reside there. ठीक? खुशबू, I didn't get to you बेटा. Any thoughts, राजे? नमस्ते दीदी। नमस्ते राजा। आई थिंक मेरा तो वही है, बुद्धि है नहीं, ईगो भर भर के है, ना निर्मल बुद्धि होगी
So I don't think so कि without God's grace anything is possible. So बस भगवान से मांगते रहो कि सब कुछ जीवन में in terms of like egoless बना दो, judgmentless बना दो. उसी की कृपा से I हो think सकता है बेटा, वरना नहीं हो पॉसिबल। जी दीदी, बस तो मेरा तो वही है दीदी, मेरा तो उनके बिना कुछ होने वाला नहीं। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। पीयूष, एनी थॉट्स बेटा? नमस्ते दीदी, नमस्ते। सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे को लगा कि क्लास 8:30 है, सो आई sort of No logged worries, in even I mess up before. sometimes. Yeah, and before that I was revising only the class. Any question? You missed a couple. No, yeah, I mean, yes, I did. So I was trying to revise, not any question or, you know, nothing new, which not everybody has added. So just being mindful of the time. I think one thing which stayed with me while revising is ये बहुत अच्छी चीज है कि अभिषेक जो है वो डिजायर का करो, डिजायर के साथ मत करो। एंड ऑल दिस वाइल वी हैव बीन डूइंग रॉन्ग, मतलब सारी पूजा से पहले संकल्प जरूर हो जाए, संकल्प देने के बाद शायद हम मंदिर से उठ के वापस आ जाए कि संकल्प हो जाना चाहिए। आई थिंक दैट ठीक है, वी मे हैव स्टार्टेड दैट वे एटलीस्ट, कि हम उस पाथ पे चलना शुरू करें, बट विद योर ग्रेस एटलीस्ट वी हैव लर्न टू नाउ गो ऑन दिस पाथ, कि हम जो भी भक्ति साधना, मैं तो शायद नहीं कर पा रहा हूँ उतनी, बट जो भी कर रहे हैं नाउ, आई थिंक इज अ टाइम वेयर वी शुड रियलाइज कि उसमें भी सेल्फलेसनेस होनी चाहिए। वी स्टार्टेड विद अ सेल्फिश मोटिव कि भगवान इस रास्ते चलाए, पर उसमें भी अब डिजायर छोड़नी है, तो ट्राई टू डू इट विदाउट संकल्प, ट्राई टू डू इट without any material gain. That's one big takeaway from the revision. I'll keep it short. बहुत सारी और चीजें थी, जैसे वात्सल्य की बात की आपने, भागीरथी ऋषि भागीरथी जी के दृढ़ निश्चय की बात की कि राजा है the next level, ऋषि नहीं है। अच्छा सॉरी, राजा, कि किस किस डेडिकेशन से उन्होंने गंगा जी को बुलाया, और दूसरों के लिए बुलाया, अपनी डिजायर के लिए भी नहीं, सेल्फलेस के लिए भी नहीं, बल्कि फॉर somebody's else desire. So if you work in that manner, I think the magical things can happen. I mean, at least I can talk about myself. I'm very far away from that place. But some of the takeaways, I'll keep it short. Thank you, beta. All right, guys. So we'll call it a day today. And more or less, we are almost through with Chitrakoot. We'll continue to talk about that next time and finish that analogy. But mostly what I wanted to help you guys understand was in the Dhyan Shloka of Ramcharitmanas, the next one that we were looking at was Lord Shiva and Parvati. तो जब तक ये पूरा डिस्कशन नहीं होता, तब तक तुम्हें श्रद्धा विश्वास कुछ समझ में ही नहीं आता। मैं तो बोल दूं, श्रद्धा विश्वास तो हमने वर्ड्स कितनी बार सुने हुए, ना भक्ति समझ में आती, ना श्रद्धा समझ में आती, ना विश्वास समझ में आता। तो अब शायद व्हेन वी गेट टू दिस श्लोका यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट। क्यों शिव जी का हम नाम लेते हैं, क्यों शिव जी को पूजा कर रहे हैं, सरस्वती माँ, गणपति और माता बुद्धि को जगाएं, और गणपति विवेक से हमें सही रास्ते पे लेके जाएं, और शिव जी उस बुद्धि का प्रयोग ऐसे करवाएं कि विश्वास हो जाए, और विश्वास हो जाएगा तो भक्ति अपने आप ही आ जाएगी। उसके लिए हमें स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं। ये तो प्रोसेस है, ध्यान श्लोक ऐसे चल रहे हैं आपके, तो इसलिए हमने ये पूरा डिस्कशन, वी एम्बार्क्ड ऑन दिस डिस्कशन। ओके, all right guys, well thank you so much for doing the class on Wednesday. I really appreciate it, and I'll see you again hopefully next week, if you guys don't mind, and if I can make it, let's do the class on Monday, because on Tuesday I won't be able to make it. I'll be on the road. Yeah, so I'll let you guys know, and we'll see what best we can do. Keep trying 110%.
All right. Thank you so much. Have a nice week. Namaste. Namaste, Didi.